Hello class, welcome to lecture 29 of Principle of Communication Systems. In today's lecture, we will discuss about Introduction to Information Theory. Information theory was invented by Claude Shannon to solve communication problems. The fundamental problem in any communication system is to achieve a reliable communication over an unreliable channel. The examples of the channels include the voice listened by the ear through the air channel. And another example of the channel is the formation of image in eye through cytoplasm and electrical impulses transmitted or received by brain. So here the cytoplasm and electrical impulses are the channels. Similarly, the communication between antennas on Earth and the aircraft in air traffic control is done using air as a channel. Another example is the landline telephone systems where the copper wire serves as a channel between the telephone systems and the exchanges. So all of these channels have common property that received signal is not always identical to the transmitted signal. So in practical scenario, the received signal is approximately equal to the transmitted signal plus noise. So in most of the applications, we need reliable communication. That is, we would like to have original transmitted signal without any noise. So to get a reliable communication, the solutions or the approach can be the physical solution or the system solution. The physical solution throw away noisy channel and replace with the better and expensive channels. For example, for the telephone systems, we can replace copper wires with the optical fiber. So in physical solutions, basically we are changing physics to reduce noise or any other data corruption. Alternatively, we can go for system solutions or the system approach. So what the system approach or the system solution does, it basically keeps the lousy channels as it is and add encoding and decoding systems around that channel to turn it around into a reliable communication. So the system approach accepts unreliable channel as it is and transforms it into a reliable system. And that's what the information theory is about. So the basic building block of any communication system is the source message followed by the encoder which encodes the source messages and then transmit the signal. The transmitted signal will have the coded transmission over a noisy channel. The channel adds noise in it, whereas on the receiver side, the received message will have the corrupted version of this coded transmitted message. So encoder is some sort of system that adds redundancy to the system, whereas decoder on the receiver side makes use of this known system for adding redundancy to try to infer both coded transmitted signal and noise. So decoder will be the system for inferring the noise and the source message or the coded transmitted signal. So information theory में हमारे पास जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज इनकोडिंग एंड द डिकोडिंग ऑफ द मैसेज सिग्नल. सो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं. द वन ऑफ द कंसेप्ट इज अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इवेंट है जो है x इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन, और इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है हर इवेंट की दैट इज पी नॉट पी वन अप टू पी एन, वेयर एज
अगर मैं इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूं तो आई विल गेट 1. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोबेबिलिटी. सो अगर मैं ये कहूं कि x नॉट के होने की, इवेंट अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी है p नॉट, दैट इज इक्वल टू 0 और दैट इज इक्वल टू 1. सो वी आर सर्टेन अबाउट दिस कि p नॉट 0 है, इट मीन्स कि दैट इज नॉट हैपनिंग, और p नॉट 1 है, इट मीन्स कि ओनली दिस इवेंट इज हैपनिंग इफ वी नो दीज टू एक्सटेंट्स. तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास वी आर सर्टेन अबाउट दिस एंड द अनसर्टेनिटी इज 0. वेयर एज अगर मैं ये कहूं कि इस इवेंट अकरिंग की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज p नॉट इज इक्वल टू 0.1, तो इसका क्या मतलब है कि 10% चांसेस हैं कि ये इवेंट अकर करेगा और 90% चांसेस हैं कि ये इवेंट अकर नहीं करेगा. तो हियर द अनसर्टेनिटी इज मोर. द अनदर बेसिक प्रॉपर्टी और द इंफॉर्मेशन इज द मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सोर्स है जो एमिट कर रहा है इंडिपेंडेंट मैसेजेस को M1, M2, M3 अप टू Mn, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं उन मैसेजेस के अकर होने की, वो है मेरे पास P1, P2, P3 अप टू Pn. एंड वी नो दिस थिंग यूजिंग द प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी दैट P1, P2, P3 अगर मैं इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूं तो आई विल गेट 1. सो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद दीज कंडीशंस जो मैं कैरी कर सकता हूं, दैट इंफॉर्मेशन इज log to the base 2 1 over pk. सो अगर फॉर एग्जांपल i1 है तो मैसेज 1 का जो बेसिकली अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी i1, दैट विल बी log to 1 over p1 के फर्स्ट मैसेज की प्रोबेबिलिटी. सो यहाँ पे ऑब्जर्व दिस थिंग कि वी हैव log to the base 2. व्हाई दिस इज इट सो कि अगर मैं अपने मैसेज सिग्नल को इनकोड कर रहा हूं यूजिंग द बाइनरी डिजिट्स, तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल बिट्स, इसके जो यूनिट्स होगी मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन की, दैट इज इन बिट्स. तो मेरे पास बाइनरी के लिए यहाँ पे क्या आया है, 2 आया है. फॉर एग्जाम्पल अदर देन दिस अगर मेरे पास कोई आर एरे सिस्टम है, आर एरे सिस्टम मीन कि मैं इस मैसेज को इनकोड करता हूँ नॉट विद द बाइनरी डिजिट्स बट लाइक विद द 3 डिजिट्स और 4 और R array system, R array units. So in that case, the information, measure of information, I will be equal to log to the base R, 1 over P. And so अगर मेरे पास 2 है तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा, log to the base 2 1 over P बिट्स में, एंड R array units में क्या होगा इसका, log to the base R 1 over P. Another यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी इज हार्टले, जो कि 10 अरे सिस्टम्स के लिए या 10 अरे इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं जब आर की वैल्यू 10 होती है. तो 1 हार्टले इज इक्वल टू log 2 to the base 10, और एक हार्टले में कितनी बिट्स होंगी, 3.32 बिट्स जो इनकोडिंग के लिए हम यूज करेंगे. और अनदर यूनिट जो इंफॉर्मेशन थ्योरी की है दैट इज 1 नेट, एंड 1 नेट इज इक्वल टू log to the base 2 into e, which is equal to 1.44 bits. इसी स्लाइड पे I am going to discuss about the very important properties of information theory or the properties of information. So the first property is कि जितनी हमारे पास अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी अबाउट द मैसेजेस के बारे में जो कि कोई भी सोर्स एमिट कर रहा है, M1, M2, M3, जितनी उनकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी उतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास ज़्यादा होगी. अगर रिसीवर एग्जैक्टली नोज कि व्हाट इज़ द ट्रांसमिटेड मैसेज, तो इंफॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास, 0 होगी. और अगर I1 है इंफॉर्मेशन मैसेज M1 की और I2 है इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज M2 की, देन जो कंबाइंड इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी I1 प्लस I2. और अगर मेरे पास जो इक्वल प्रोबेबल मैसेजेस हैं m दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, तो जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी करेगा ईच मैसेज दैट विल बी n बिट्स. तो इस स्लाइड में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखा कि अनसर्टेनिटी क्या है, मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर
हम एक और बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी और उसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन स्टडी करेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी की, दैट इज एंट्रोपी। कि जो एवरेज हमारे पास मेजर्ड इंफॉर्मेशन सोर्स मैसेज को जब इनकोड करते हैं तो जो उसकी एवरेज लेंथ ऑफ द इनकोडर होती है या इनकोडेड मैसेज होगी, उसको हम किस तरह मैथमेटिकली शो कर सकते हैं। दैट एवरेज इंफॉर्मेशन, दैट एवरेज लेंथ इज कॉल्ड द एंट्रोपी। So far we have studied about the measure of information, that is I is equal to log 1 over pi bits। अगर मैं बेसिकली बाइनरी बिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 बिट्स यूज हो रही हैं। सो द एवरेज और द मेजर्ड इंफॉर्मेशन जो पर मैसेज जो सोर्स एमिट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू समेशन I is equal to 1 to n probability of the ith event and the information of the ith event, ith message। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास m1 से लेके m2 और m3 तीन मैसेजेस हैं और इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं p1, p2 और p3। सो जो एवरेज और द मीन इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, समेशन। अब मेरे पास तीन मैसेजेस हैं, जो आई की वैल्यू 1 से लेके बेसिकली n तक जाएगी एंड n इज हियर 3। सो पी आई क्या होगा, p1 मैसेज 1 की इंफॉर्मेशन i1 प्लस p2 i2 प्लस p3 I3। So this average information per message of a source is called as entropy of the source, और इसको हम डिनोट करते हैं h of m से। So h of m क्या होगा, बेसिकली समेशन i1 to n pi probability of the ith message and ii information of the ith message। और अगर i of i की वैल्यू पुट करता हूं log of 1 over pi, और जो कि ये 1 over pi है तो ये इनवर्स में अगर लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करता हूं तो दैट विल गिव मी माइनस पी आई इंटू लॉग ऑफ न्यूमिनेटर में आके ये क्या बन जाएगा, पी आई बिट्स। सो एच ऑफ एम क्या है, अगर इफ यू ऑब्जर्व दिस थिंग कि इस इक्वेशन के अंदर जो एंट्रोपी की फाइनल इक्वेशन है उसमें एच ऑफ एम बेसिकली फंक्शन किसका है, प्रोबेबिलिटी पी आई का, जो कि किसी भी जो मैसेज की प्रोबेबिलिटी है उसका। और जो मैक्सिमम वैल्यू है एंट्रोपी की वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी पी आई और उसको जीरो के इक्वल पुट करूं तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी के मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, एवरेज उस कोड वर्ड की। सो अगर टोटल मेरे पास प्रोबेबिलिटीज हैं P1 से लेके अप टू Pn तक, और एंड आई नो दिस थिंग कि इन सब के प्रोबेबिलिटीज का एडिशन किसके बराबर होगा, 1 के। सो अगर यहां से मैं Pn की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस P1 प्लस P2 अप टू Pn माइनस 1, एंड h of m is basically equal to minus summation I equal to 1 to n pi log of pi, and we know what the pi is. Pi is the basically probability of the ith messages, and this is basically nothing but the information of the ith message. So to find out maxima हमने क्या किया है कि dhm over dpi, solving this we get log pn over pi। pn किस चीज को शो कर रहे हैं कि probability of the nth messages and pi is the probability of the ith messages। फॉर एग्जांपल अगर मैं m1 की फाइंड आउट कर रहा हूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी लॉग रेशियो डिवाइड nth मैसेज की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय द ith मैसेजेस विच इज 0 अगर हमारे पास pi और pn अगर दोनों इक्वल हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर p1 p2 अप टू Pn किसके बराबर होगा, 1 over n। इसका क्या मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वी प्रोबेबल केस के सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। सो
वी नो दैट कि ऑल दिस, ये जो हमने डेरिवेटिव लिया ये हमें क्या बता रहा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता रहा है, एंट्रोपी बता रहा है एच ऑफ एम कि मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, मिनिमम वैल्यू नहीं बता रहा। अगर मेरे पास P1 इज 1, पहले मैसेज की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो बाकी सारे मैसेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज आई नो कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होना चाहिए, 1 का। सो बाकी सारे मैसेजेस की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो विच इम्प्लाइज कि एच ऑफ एम क्या है, 0 है। सो इन दैट केस जो प्रोबेबिलिटीज हैं इक्वेशन 15.10 के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू 1/n पी आई, ठीक है, बिकॉज इट्स P1 log ऑफ 1/n। और अगर इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट एच ऑफ एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ n, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस। सो डिस्कशन कि इंफॉर्मेशन कंटेंट्स ऑफ एनी मैसेज इज इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स और डिजिट्स रिक्वायर्ड टू इनकोड द मैसेज, ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन आई बता रहा है। वेयर एज जो एंट्रोपी है दैट इज इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पर मैसेज, जो हमें ऑन एवरेज रिक्वायर होंगे किसी भी मैसेज सिग्नल को इनकोड करने के लिए। जो हमने स्लाइड नंबर 2 के ऊपर एक कंप्लीट सिस्टम को स्टडी किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि सोर्स मैसेज को बेसिकली हम इनकोड करते हैं यूजिंग एन इनकोडर। अब वो जो इनकोडिंग है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन कंटेंट्स, और सेकंड द एंट्रोपी पे, कि एंट्रोपी के ऑन एवरेज हमें कितनी मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर होंगे किसी भी मैसेज को इनकोड करने के लिए। सो इसका क्या मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है आई, दैट इज लॉग ऑफ 1/pi, वो क्या बता रही है, मेजर ऑफ अनसर्टिनिटी ऑफ द मैसेजेस, ठीक है, आयत मैसेज की। और जो एंट्रोपी है वो क्या बता रही है कि एवरेज अनसर्टिनिटी बता रही है पर मैसेज के, ठीक है, उस सोर्स के बारे में जो सोर्स जनरेट कर रहा है मैसेजेस M1 M2 अप टिल Mn, और उनकी जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज होंगी वो क्या होंगी, P1 P2 अप टिल Pn। I am talking about this M1 M2 up to Pn and P1 P2 up till Pn। so जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आए है, और सेकंड जो है हमारे पास एंट्रोपी, ये इंफॉर्मेशन थ्योरी की बड़ी आप कह लें कि एक क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग भी है, और यही बेसिक रिजल्ट्स हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन थ्योरी के। और जो जब भी हम कोई कोडिंग एल्गोरिदम स्टडी करेंगे, इन कोडिंग एल्गोरिदम, तो हम बेसिकली इसी इंफॉर्मेशन थ्योरी को और इसी एंट्रोपी को यूज करते हुए हम उसकी कोड वर्ड की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। सो अगर मेरे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल्स हैं, जो मैसेजेस हैं वो रैंडम वेरिएबल्स हैं M1 M2 अप टिल Mn, और उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, PM1 PM2 अप टिल Pmn, देन आई कैन डिफाइन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर द एंट्रोपी, जो एवरेज मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ऑन एवरेज किसी भी मैसेज के अंदर जो इनकोडिंग के लिए यूज होंगे, आई कैन फाइंड आउट P ऑफ Mi log ऑफ 1/P ऑफ Mi, जो कि एग्जैक्टली लास्ट स्लाइड के ऊपर एंट्रोपी की डेफिनेशन के बराबर है। सो इट मींस कि हम एंट्रोपी को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं। सो इफ द सोर्स इज नॉट मेमोरीलेस, मेमोरीलेस का क्या मतलब है कि अगर एक मैसेज दूसरे मैसेज पर डिपेंडेंट है, और जो M2 है उसके पास M1 की इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है, या प्रीवियस मैसेज पर डिपेंड कर रहा है, तो उस सूरत में जो सोर्स की एंट्रोपी होगी वो लेस होगी हमारे पास जो मेमोरी लेस सिस्टम है। मेमोरी लेस सिस्टम मीन कि जो कि इंडिपेंडेंट सिस्टम है। क्यों? बिकॉज कि जो मैसेज डिपेंडेंसी है प्रीवियस मैसेज के ऊपर, वो अनसर्टिनिटी को कम कर रही है। सो अनसर्टिनिटी अगर कम हो रही है, जैसा कि हमने इसी स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया है कि जो एंट्रोपी है वो एवरेज अनसर्टिनिटी को भी बता रही है पर मैसेज के, तो हमारे पास जो एंट्रोपी होगी सोर्स की
for the memoryless system that will be less than the जो memoryless system नहीं है उसकी जो एंट्रोपी होगी सोर्स की एंट्रोपी दैट विल बी लेस देन द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ एच एफ एम, जो कि हमने किसके लिए डिफाइन की है, मेमोरी लेस सिस्टम के लिए। और जो अनसर्टिनिटी होगी ऐसे सिस्टम की जो मेमोरी लेस नहीं है वो बेसिकली कम होगी। सो फार वी ऑब्जर्व दैट कि जो मिनिमम नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स जो हैं वी कैन रिक्वायर टू इनकोड अ मैसेज, और जो उनकी एंट्रोपी है सोर्स एंट्रोपी जो कि इंफॉर्मेशन है log 1 ओवर पी आई, तो उनकी एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट होगी, समेशन 1 आई इज इक्वल टू 1 टू n पी आई इंटू लॉग ऑफ 1 ओवर पी आई। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वी आर टॉकिंग कि जो मैसेजेस हैं m1 टू mn वो इक्वी प्रोबेबल हैं। इक्वी प्रोबेबल मीन कि उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो मैसेजेस हैं m1 m2 तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 1/2। अब हम इस स्लाइड के ऊपर वी विल सी कि अगर मेरे पास नॉन इक्वी प्रोबेबल मैसेजेस हैं तो उस सूरत में उस केस में हाउ वी कैन डिफाइन द प्रोबेबिलिटी, कि उनकी प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर्बिट्रेरी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है मैसेजेस की, और उनकी जो एंट्रोपी है इनकोडिंग की, जो एवरेज लेंथ है कोड वर्ड की फॉर ईच मैसेज, वो एच ऑफ एम है। सो अगर मेरे पास मैसेजेस हैं m1 से लेके mn एंड दोज मैसेजेस आर बेसिकली m1 m2 अप टू mn, और उनकी जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हैं दोज आर p1 p2 अप टिल pn। सो अगर मेरे पास इन n मैसेजेस का m1 से mn मैसेजेस का सीक्वेंस जो है, और ये सॉरी दिस here n is small n. So for a sequence of n messages, for a sequence of n messages, whereas n is very large and it approaches to the infinity, और अगर ki जो है नंबर ऑफ टाइम्स हैं जो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है कि मेरे पास mi मैसेज अकर होगा किस सीक्वेंस के अंदर, इन n सीक्वेंसेस के अंदर, तो देन इन दैट केस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ith एलिमेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू ki ओवर n। n क्या है मेरे पास, उन मैसेजेस, इस n मैसेजेस का सीक्वेंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव मैसेज लाइक m1 m2 mn or m1 m1 m2 mn mn। सो इस केस में यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग कि जो मेरे पास ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में मेरे पास आई जो है वो कितनी दफ़ा, 1 कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है, 2 टाइम्स। इसी तरह इन कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है, 2 टाइम्स। और इस केस में सारे कितनी कितनी दफ़ा अपीयर हो रहे हैं इस सीक्वेंस के अंदर मेरे पास 1 टाइम। सो विच मीन्स कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी आई की दैट विल बी के आई ओवर एन, और के आई किस चीज़ को शो कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स जो एम आई जो है वो अकर होगा किसी भी सीक्वेंस के अंदर। सो इसका क्या मतलब है कि एम आई जो है वो कितनी दफ़ा अपीयर होगा, n इंटू पी आई टाइम्स इन अ सीक्वेंस ऑफ n मैसेजेस, वेयर एज n टेंड्स टू द इंफिनिटी। ये तभी पॉसिबल है कि जब n हमारे पास इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। सो इन अ टिपिकल सीक्वेंस ऑफ n मैसेजेस, और उन मैसेजेस के अंदर जो मेरे पास सोर्स एमिट कर रहा है मैसेजेस को वो m1 से mn तक है। m1 जो है वो अकर होगा, m1 will occur
total number of sequences n tends to infinity, P1, M2 will occur n into P2 and जो Mn होगा that will occur n into Pn. Now consider a typical sequence Sn of n messages emitting from the source. And remember, we are talking only about the memoryless systems in which the message M1 is independent of the M2 and so on. So each message will occur np times, and the probability of the typical sequence Sn is equal to P1 np1 multiply by P2 np2 up to Pn npn. So this is the possible sequence of the n messages from the source, and this possible sequence have the same composition, and all the sequences are equiprobable with probability P of Sn. So we can now consider these long sequences as a new message. So to encode such a long sequence, we need ln binary digits, and ln is equal to log 1 over psn binary digits. And substituting the value of p of sn, this value of p of sn here, we can get L of n, that is the length of the code word required to encode n messages in a sequence. So the length of the code word is basically the number of binary digits is equal to n pi log 1 over pi, and this is basically the entropy of the source. So ln is equal to n into hm, and we can find the average number of digits required per message, and the average number of digits is basically L. This is the average number, and this is basically equal to ln, the length of the code word, divided by the n sequences, the total sequences, and this is equal to the hm. So in the light of these two results, it is shown that it is possible to encode the messages emitted by the source using on average the number of binary digits per message, and the average is basically the entropy of the source, and that is in bits. And it is not possible to find any uniquely decodable code whose average length is less than the entropy of the source, and we can find the entropy of the source using ln, the length of the code word, divided by the total number of the sequences for the messages m1 up to mn emitted by a source. On previous two slides we observed that कि किसी भी सोर्स मैसेज को इनकोड करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स हैं बाइनरी डिजिट्स को अगर हम रखें, तो हमें जो एंट्रोपी ऑफ द सोर्स है एच ऑफ एम, उतनी बाइनरी डिजिट्स चाहिए, उतनी बाइनरी डिजिट बिट्स चाहिए हमें सोर्स मैसेज को इनकोड करने के लिए.
और अगर हमें पर मैसेज आर एरे डिजिट्स चाहिए तो तब हमारे पास अदर देन बाइनरी डिजिट्स, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एग्जांपल्स करेंगे एक दो, तो उसमें फिर ये क्लियर हो जाएगा कि आर एरे डिजिट्स का क्या मतलब है और बाइनरी डिजिट्स का क्या मतलब है। तो तब हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स चाहिए टू इनकोड अ सोर्स मैसेज, दैट विल बी एच आर ऑफ एम। सो ऑप्टिमम कोड लेंथ क्या होगी किसी भी मैसेज के लिए, दैट इज एच ऑफ एम। सो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे दो एक्सट्रीम एंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट एंड इज कि अगर हमें लेंथ ऑफ द कोड वर्ड चाहिए इन जनरल, हमें बेसिकली एक सीक्वेंस जो कि इन मैसेजेस पे कंसिस्ट कर रहा है उसको इनकोड करने के लिए हमें मिनिमम एच एफ एम चाहिए, और उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हैं वो एट अ टाइम के होंगे, वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये लॉन्गर सीक्वेंसेस यूज नहीं कर रहे किसी भी मैसेज को इनकोड करने के लिए, तो तब हमारे पास जो एवरेज लेंथ होगी कोड वर्ड की, दैट विल बी ग्रेटर देन एच एफ एम। और इस केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर इट मीन कि यहाँ पे एच एफ एम से ग्रेटर हो गई हमारे पास कोड वर्ड की लेंथ अगर हम लॉन्गर सीक्वेंसेस यूज नहीं कर रहे, और अगर लॉन्गर यूज कर रहे हैं तो तब हमारे पास मिनिमम लेंथ एच एफ एम होगी, लेकिन दूसरी साइड पे जो सीक्वेंसेस हैं वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। और जो लॉन्गर सीक्वेंसेस हैं वो क्या कॉज करते हैं, ट्रांसमिशन डिलेज को और इक्विपमेंट की कम्प्लेक्सिटी को। सो इन दोनों ट्रेड ऑफ्स को ध्यान में रखते हुए कॉम्पैक्ट कोड्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं, और दीज कॉम्पैक्ट कोड्स आर द ऑप्टिमम सोर्स कोड्स। ठीक है, और जहाँ पे लॉन्गर सीक्वेंसेस भी नहीं आते और हमारे पास जो एच एफ एम है वो जो एंट्रोपी है वो मिनिमम रहती है। तो इस तरह का एक कोर्स एक एनकोडिंग स्कीम है दैट इज कॉल्ड हफमैन कोड्स, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इन द लाइट ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स इस हफमैन कोडिंग को स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऑफ मैसेजेस हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी, और डिपेंडिंग अपॉन दोज मैसेजेस एंड प्रोबेबिलिटीज अगर हमने उसको इनकोड करना है यूजिंग बाइनरी डिजिट्स, तो यूजिंग हफमैन कोडिंग जो कोड वर्ड होगा उसकी वो क्या बनेगा, उसकी लेंथ क्या होगी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी उस कोडिंग स्कीम की। ठीक है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको ऑब्जर्व करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हफमैन कोडिंग यूजिंग सम एग्जांपल। सो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास मैसेजेस हैं M1 से लेके M6 तक, 6 मैसेजेस हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन हैं एंड ये इक्वी प्रोबेबल नहीं है। M1 की प्रोबेबिलिटी 0.30 है, M2 की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, सिमिलरली M3 की 0.15 गिवन है, और M5 की 0.10 है, एंड M6 की जो है वो 0.08 है। और हफमैन कोडिंग में हम क्या करेंगे कि इन प्रोबेबिलिटीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन सबसे हाईएस्ट की प्रोबेबिलिटी सबसे टॉप पे होगी और सबसे लोएस्ट की प्रोबेबिलिटी सबसे बॉटम पे होगी। ठीक है, सो ये ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। M1 से लेके M6 की प्रोबेबिलिटीज सीक्वेंस भी सेम है, 1 2 3 4 5 6, और प्रोबेबिलिटीज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। सो हफमैन कोड का जो सबसे पहला प्रोसीजर है वो क्या है कि आप लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज को लें, ऐड अप करें, जो आंसर आता है उसको बाकी लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज में देखें कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस लिस्ट पे आ रहे हैं और उसको वहां पे प्लेस करना है। ठीक है, सो सबसे पहले देखें कि 0.10 और 0.08 को ऐड अप किया, 0.18 आया, तो ये इस लिस्ट में थर्ड नंबर पे आ रहा है। फर्स्ट 0.30 एज इट इज मूव ऑन कर रहे हैं, 0.25 एज इट इज है, देन कम्स द एडिशन वन, एडेड 1.18, 0.15 यहाँ पे मूव ऑन कर जाएगा और 0.12 यहाँ पे मूव ऑन कर गया। ठीक है, फिर सिमिलरली आपने 0.15 और लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करना है, द आंसर इज 0.27, और ये S1 जो सीक्वेंस 1 है इसकी लिस्ट के ऊपर ये जो मेरे पास मैसेज आ रहा, सॉरी इन दोनों का एडिशन आ रहा है प्रोबेबिलिटीज का, वो 0.27 है और वो इस S1 की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आ रहा है क्योंकि हाईएस्ट इज 0.30 एंड द एडेड वन इज 0.27।
0.30 is at as it is, 0.27 is the added one, और 0.25 फिर यहाँ पे मूव कर गई, और 0.18 यहाँ पे मूव कर गई। मैं स्टॉप यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों प्रोबेबिलिटीज 0.15 और 0.12 ऑलरेडी एड अप हो चुकी हैं। देन S2 के बाद जब सीक्वेंस 3 पे मैं जा रहा हूँ, पॉइंट लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज को अगेन ऐड करना है, 0.25 एंड 0.18, दोनों को ऐड अप किया, आंसर आया 0.43 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0.30 जो इसका प्रीवियस सीक्वेंस है, जिस जो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है उसके अंदर 0.30 हाईएस्ट है, लेकिन एडेड 1.43 टॉप पे आ गई, 0.30 यहाँ पे एंड 0.27 यहाँ पे आ गई। अगेन लास्ट टू को ऐड अप करना है, देन इट इज 0.57 और 0.43 बॉटम पे मूव कर जाएगी एट दिस पॉइंट। और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करूंगा, ये डिपेंड करेगा हफमैन कोडिंग के कोडिंग स्कीम के ऊपर, कि अगर मैं बाइनरी डिजिट्स को यूज कर रहा हूं तो मैं जब तक ये टू लास्ट पे 2 नहीं बचते मेरे पास, तब तक मैं इस प्रोसेसिंग सीक्वेंस इस सीक्वेंसिंग को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखेंगे कि अगर मैं आर अरे कोडिंग स्कीम यूज कर रहा हूँ जहां पे बाइनरी डिजिट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू 4 है, 5 है, 8 है, तो तब मैं उसको कहां तक कंटिन्यू करूंगा, जब तक वो r-1 तक नहीं रहता। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स के उसको किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। सो पहला प्रोसीजर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने 4 सीक्वेंसेस बनाने हैं, ठीक है, और लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके फिर उसी लिस्ट में ऑब्जर्व करना है कि सबसे हाईएस्ट क्या वो बन रही है या नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो उसको फिर उसी डिसेंडिंग ऑर्डर में उस लिस्ट पे प्लेस करके बाकी प्रोबेबिलिटीज को आगे कैरी ऑन करना है। सो आफ्टर दैट जब मैंने ये सारी प्रोबेबिलिटीज और सीक्वेंसिंग क्रिएट कर दी, इसके बाद नेक्स्ट टेबल पे मैं इसको वापस एक दफ़ा डिफरेंट कलरिंग में इसको शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। देखें, एड अप किया 0.30 एज इट इज, 0.25 एज इट इज, एडिशन तीसरे नंबर पे आ गया, 0.15 यहाँ पे आ गया और 0.12 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट मेरे पास 0.30 एज इट इज, एडिशन दूसरे नंबर पे आ गया, 0.25 थर्ड पे चला गया और 0.18 फोर्थ पे चला गया। सिमिलरली जब मैंने S2 वाले में से लास्ट 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया, वो हाईएस्ट पे आ गई क्योंकि 0.43 इज ग्रेटर देन 0.30, देन 0.30 इसके नेक्स्ट उस पे मूव ऑन कर गया और 0.27 इसके नेक्स्ट पे मूव ऑन कर गया। और S3 में लास्ट 2 को जब मैं ऐड अप करूंगा तो 0.57 हाईएस्ट देन 0.43, सो इट इज ऑन फर्स्ट नंबर एंड 0.43 इज ऑन द सेकेंड नंबर। अब मैंने क्या करना है कि इन जो मैंने ऐड अप किए टर्म उनको कोड वर्ड असाइन कर देना है, 0 और 1। टॉप वाले को 0 असाइन करना है, बॉटम वाले को 1 असाइन करना है। बाइनरीज 1, क्योंकि मैं हफमैन कोडिंग इस एग्जांपल में जो कोडिंग यूज कर रहा हूँ वो हफमैन कर और बाइनरी डिजिट्स कर रहा हूँ, तो वो बाइनरी डिजिट्स क्या है, 0 है या 1 है, लेकिन टॉप पे हमेशा 0 रखना है और बॉटम पे 1 रखना है। सिमिलरली ये दो ऐड अप हुए हैं, दिस विल बी 0 1, ये दो ऐड अप हुए हैं, दिस विल बी 0 1, और ये दो ऐड अप हुए हैं, दिस विल बी 0 1। नाउ अब मैं अपना कोड वर्ड डिफाइन करूंगा हर एक मैसेज के लिए कोड वर्ड। तो वो कैसे डिफाइन करना है कि आपने फर्स्ट 0.30 के रूट को फॉलो करना है। ऑब्जर्व दिस थिंग कि 0.30 ये रूट फॉलो कर रहा है, इसके बाद यहाँ पे मूव ऑन हुआ, देन इसका एडिशन होके ये आया एंड देन इट मूव्स टू 0.57 यहाँ पे ये। और इसके इस रूट के अंदर जितने कोड वर्ड्स आ रहे हैं जो 0 और 1 मैंने असाइन किए हैं उनको S4 से बैकवर्ड स्टडी करना है अप टू S1। सो अब देखें यहाँ पे 0 पहले आया, देन इस येलो लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, देन अगेन 0 आ रहा है और उसके बाद कोई कोड नहीं आ रहा। सो कोड वर्ड फॉर द M1 इज 0 0, पहला बैकवर्ड डायरेक्शन में 0 एंड देन this 0. Now let's study the second one. So second one is 0.25. So 0.25 के रूट को अगर मैं स्टडी करूं 0.25, then comes to here,
then it goes to this direction and then it goes to the drawn direction red one. तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि आपके पास 1 एक कोड वर्ड आया, यहाँ पे कोई कोड वर्ड नहीं है, देन यहाँ पे 0 है और फिर बैकवर्ड पे कोई कोड वर्ड नहीं है. सो फॉर 0.25 M2 मैसेज के लिए जो कोड वर्ड होगा वो क्या है 10. अब थर्ड स्टडी करते हैं. थर्ड इज 0.15. 0.15 की रूट स्कीम देखें. 0.15 this point, then it goes here, this one, ये again यहाँ पे और then 0.57 at this one. So इसको बैकवर्ड पढ़ूंगा. देखें 0 1 0 this one, sorry not this one, 0 1 0.27 पे देखें कोई एड अप नहीं हो रहा एंड देन दिस इज द 0. सो इन 3 पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं. 0 let me highlight those points. देखें 0 goes back here, it is 1, then goes to 0.27, no code word, and then this is the 0. So अगर इसको मैं बैकवर्ड पढ़ूं 0 1 0, so code word for 0.15 M3 message is 0 1 0, this one here. अब मैं इसको इरेज करके हम M4 को के कोड वर्ड को स्टडी करते हैं. So M4 का कोड वर्ड है, M4 is basically 0.12. Observe the root of 0.12. लेकिन this point यहाँ पे आया, यहाँ से फिर इधर गया 0.27 पे, then this follows 0.27, then goes here and then up to 0.57 this point. अब यहाँ पे कोड वर्ड्स देखें. हमारे पास क्या आया सबसे पहले 0, ये रूट 1, यहाँ से वापस 0.27 पे और ये यहाँ पे फिर 1, नो कोड 0.12. सो ये जो रेड एनसर्कल्ड हैं 0 बैक 1 पे पढ़ें, 0 बैकवर्ड 0 1 1. सो 0 1 1 इज द कोड वर्ड फॉर द M4. Now let's get the code word for M5. M5 is 0.1. अगेन इसको यहाँ पे मैं कोड वर्ड असाइन करूंगा 0 1. यहाँ पे कोड वर्ड असाइन नहीं थे. M5 is 0 1. सो 0 1 इसका रूट स्टडी करें. It goes in this direction. Here 0.18, 0.18, then goes to 0.43 and then 0.43. ओके. सो अगर इसको मैं बैकवर्ड पढ़ता हूँ, यहाँ पे देखें 1 है, नो कोड, देन अगेन 1 एंड देन 0. सो इसको लेट मी हाईलाइट दिस 1, फॉलो करें इसको 1, this one second one goes back, no coding, and at this point this is 0. so इसको अगर मैं बैकवर्ड स्टडी करूंगा 1 1 0, this is the code for M5. and finally 0.08, follow this 0.08, 1.18, no code, 0.18, then again see this 1, then 0.43 and this and again this one. So यहाँ पे 1, second one
and this third one. So M5 का जो M6 का कोड वर्ड है that is, क्योंकि इसको बैकवर्ड पढ़ेंगे तो 1 1 1, so it will be 1 1 1. This is the code word for M6. So now हमने अपने मैसेज को एनकोड कर दिया है यूजिंग हफमैन कोडिंग. और कौन सी कोडिंग यूज हुई है? बाइनरी डिजिट कोडिंग. सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि यूजिंग हफमैन कोडिंग हम किस तरह इनकोड कर सकते हैं मैसेज को डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेबिलिटीज, अगर उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है. सो जो लेंथ ऑफ द कोड वर्ड है, जो प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा कि लेंथ ऑफ द कोड वर्ड इज PI प्रोबेबिलिटी ऑफ द आयत मैसेज इनटू LI लेंथ ऑफ द कोड वर्ड ऑफ द आयत मैसेज, और कर इनके सबका समेशन. सो टोटल यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 मैसेजेस हैं, तो 6 कोड वर्ड्स हैं. तो अगर मैं पहले मैसेज की बात करता हूं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.30 और उसकी जो कोड लेंथ है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 और 2. ये इसकी कोड लेंथ है, तो ये 2 इधर आ जाएगा. सिमिलरली सेकंड मैसेज की प्रोबेबिलिटी है 0.25 और 0.25 सेकंड मैसेज की प्रोबेबिलिटी, और सेकंड मैसेज का जो कोड वर्ड हमने बनाया उसकी लेंथ भी 2 है. दिस एनसर्कल्ड 1 2, तो यहाँ पे लेंथ 2 आ गई. और थर्ड में देखें 3 4 5 और 6 में कोड वर्ड चेंज, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए, तो इनकी कोड लेंथ कितनी होगी? कोड वर्ड की जो लेंथ होगी दैट विल बी 3 और उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है. सो इन सब को मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटीज को और उनके मैसेज कोड वर्ड लेंथ को, और उन सबको ऐड अप करना है. तो जो हमारे पास कोड वर्ड की लेंथ आएगी दैट विल बी 2.45, जो लेंथ ऑफ द कोड वर्ड होगी, एवरेज लेंथ. वेयर एज ऑन द अदर हैंड वी नो कि जो मिनिमम हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स हैं दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द एंट्रोपी. इनकोडेड बिट्स की जो मिनिमम नंबर है वो यूजिंग एंट्रोपी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वो हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे? HM इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n P of I प्रोबेबिलिटी ऑफ द ith मैसेज इनटू log टू द बेस 2. चूंकि हम बाइनरी डिजिट्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. अगर R अरे होगा तो यहाँ पे इसकी बेस क्या होगी? R होगी. और 1 over P of I, और P of I is again the probability of the ith message. So putting the values we will get the minimum number of bits 2.418, और जो एग्जैक्ट है हमारे पास कितने बाइनरी डिजिट्स हैं हमारे पास? टोटल 2.45. हफमैन कोडिंग या किसी भी कोडिंग स्कीम की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए वी रिक्वायर ईटा, और फॉर हफमैन कोड जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, कोडिंग एफिशिएंसी का, दैट इज एंट्रोपी डिवाइडेड बाय द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स जो कि हमने यूज की हैं उस मैसेज को इनकोड करने के लिए, उस कंप्लीट मैसेज स्कीम को इनकोड करने के लिए. सो इस एग्जांपल में प्रीवियस स्लाइड पे हमने HFM को फाइंड आउट किया है 2.418 और जो कोड वर्ड लेंथ है दैट इज 2.45. सो जो इस कोड की एफिशिएंसी है दैट इज 97%, विच इज नॉट बैड. एंड द रिडंडेंसी gamma is found using 1 minus eta, and gamma is equal to 1 minus eta, and eta is 0.976 and the redundancy is 0.024. so I hope कि आपको हफमैन कोड की अप्रोच समझ आ गई है कि किस तरह हम आगे होगी कि किस तरह हम यूजिंग हफमैन कोड अपने मैसेजेस को एनकोड कर सकते हैं. So Huffman codes are uniquely decodable. So if we receive a sequence of Huffman coded message, it can be decoded only one way without any ambiguity. For example कि अगर मेरे पास एक मैसेज सीक्वेंस है M1, M5, M2, M1, M4, M3, M6, ये मेरे पास मैसेज सीक्वेंस है. So इसको एनकोड कैसे करेंगे? क्योंकि M1 का जो एनकोडिंग है दैट इज, मैं यहां पर लिख देता हूं M1 00 जो हमने कोड वर्ड बनाया था 00 10 010 011 110 एंड 111.
ये M1 का है और ये M लास्ट वाला M6 का है। तो देखें सबसे पहले M1 आ रहा है तो इसको कोड कैसे करेंगे, 0 0, this 0 0 is because of this. Similarly second is M5, M5 का कोड क्या है, this is 1 2 3 4 5, this one is 5 1 1 0, so this 1 1 0 is here. Then third is M2, M2 is 1 0, M2 is 1 0 and this M2 1 0 is here. Similarly M1 वापस आ गया, M1 का अगेन हमारे पास 0 0 है, वो यहाँ पे आ गया. So इस कोई भी मैसेज सीक्वेंस है, we can encode that message sequence depending upon कि जो probabilities हमें previous slide पे given थी, हम अपने मैसेज को encode कर सकते हैं. Now let's discuss the Huffman coding scheme for R array codes. R array का क्या मतलब है कि अगर मैं बाइनरी डिजिट्स यूज करते हुए कोडिंग नहीं कर रहा बल्कि टर्शरी या क्वाटरनरी अरे को यूज कर रहा हूँ. क्वाटरनरी अरे मीन कि R की वैल्यू अगर 4 है. सो फॉर दैट केस अगर उसका हम प्रोसीजर नेक्स्ट स्लाइड में इन द लाइट ऑफ सम एग्जांपल उसको स्टडी करेंगे, लेकिन एक उसका जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर हम आर अरे कोड यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली जो मैसेजेस लेफ्ट होंगे रिड्यूस सोर्सेज में वो आर मैसेजेस होंगे. और ये कब पॉसिबल होगा, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आर प्लस के इंटू आर माइनस 1, और k क्या है हमारे पास, कोई भी इंटीजर है और ये नॉर्मली हम 1 लेते हैं. ये रीज़न इसलिए, इसकी रीज़न ये है कि हम इस कंडीशन को इसलिए सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हर रिस्पेक्टिव सीक्वेंस के अंदर जो रिड्यूस सोर्सेज हैं वो डिक्रीज करेंगे बाय अ नंबर ऑफ r माइनस 1. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास r की वैल्यू 4 है तो जो डिक्रीज्ड सोर्सेज होंगे एंड पे वो मेरे पास होंगे 0 1 2 एंड 3. सो यहाँ पे देखें r इज 4 बट ये जो रिडक्शन है दैट इज 4 माइनस 1 3. सो अगर हमारे पास टोटल k रिडक्शंस हैं तो जो ओरिजिनल मैसेज हमारे पास होना चाहिए दैट विल बी ऑफ दिस लेंथ. टोटल नंबर जो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज के अंदर होंगे दैट शुड बी r प्लस k इंटू आर माइनस 1 अगर हमारे पास टोटल k रिडक्शंस हैं. सो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में जिस तरह ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास a की रिडक्शन है तो हमारे पास जो टोटल बनेगा वो k की वैल्यू वहां पे 1 आएगी. सो इस केस में अगर ओरिजिनल मैसेज इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता r प्लस के माइनस 1 को, k इंटू आर माइनस 1 को, तो हमें एक डमी मैसेज ऐड करना पड़ेगा विद जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ताकि हमारे पास अंटिल दिस r प्लस के इंटू आर माइनस 1 कंडीशन इज फुलफिल्ड. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास r4 है और नंबर ऑफ मैसेजेस जो हैं वो 6 हैं. अब रिडक्शंस टोटल देखें R4 के हिसाब से टोटल 6 के बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिडक्शंस 4 बचेंगी तो एक k रिडक्शन k की वैल्यू 1 होगी. सो इस केस में क्योंकि नंबर 6 है अगर k की वैल्यू 1 है तो 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 द आंसर इज 7. तो टोटल कितने मैसेज होने चाहिए 7, लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं 6. तो इस केस में हमें एक डमी मैसेज ऐड करना होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, जो कि नेक्स्ट एग्जांपल में मैं इसको फर्दर क्लैरिफाई कर दूंगा. सो आर अरे कोड्स को अगर हम यूजिंग हफमैन कोडिंग के मैसेजेस को इनकोड कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे पास जो सेटिस्फाइंग क्राइटेरिया है दैट शुड बी r प्लस के इंटू आर माइनस 1 और k क्या है हमारे पास टोटल की रिडक्शंस को शो कर रहा है. Example 2 of Huffman code is a zero memory source emits 6 messages with probabilities 0.3, 0.25, 0.15, 0.12, 0.1 and 0.08. Find the 4 array that is quaternary Huffman code. Determine its average word length, efficiency and redundancy. सो इस एग्जाम्पल में हम बाइनरी डिजिट्स यूज नहीं कर रहे बल्कि हमें r की वैल्यू क्या दी गई है 4 दी गई है.
सो डिपेंडिंग अपॉन आर की वैल्यू 4 पे हमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है जो प्रीवियस हमने स्लाइड पे ऑब्जर्व किया है दैट इज आर प्लस के इंटू आर माइनस वन, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। और के किसको शोज कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ रिडक्शंस को। सो अगर यहाँ पे देखिए मेरे पास 6 है तो मैं लास्ट 4 को ऐड अप करता हूँ। इस पे भी डिस्कस करते हैं लास्ट 4 को ऐड अप करने पे, क्योंकि एग्जांपल 1 में हमने बाइनरी डिजिट्स की बात की है तो हम लास्ट दो प्रोबेबिलिटीज को जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज थी उनको ऐड अप करते हैं। तो यहाँ पे देखें आर की वैल्यू 4 है। 4 अगर टोटल रिडक्शन इसकी 1 है तो 4 माइनस 1 3। सो मेरे पास टोटल कितने मैसेजेस होने चाहिए? 7 मैसेजेस, बट हेयर आई हैव 6 मैसेजेस। तो 7 मैसेजेस के तौर पे मैंने M7 एक डमी मैसेज ऐड किया और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रखी है? 0.00। सो इस टेबल के अंदर मेरे पास मैसेजेस हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने प्रोबेबिलिटीज को अरेंज कर दी है। अब R की वैल्यू क्या है? 4। सो एग्जाम्पल 1 में हमारे पास 2 थी वैल्यू, बाइनरी डिजिट्स थे, तो हम लास्ट 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करते थे। लेकिन 4 अरे में या R की वैल्यू जितनी भी होगी उसके मुताबिक हम उनकी प्रोबेबिलिटीज को उन प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करेंगे। जैसा कि यहाँ पे R की वैल्यू 4 है तो हम लास्ट प्रोबेबिलिटीज 4 प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करेंगे, 1 2 3 एंड 4, दीज 4 प्रोबेबिलिटीज। इनका आंसर क्या है मेरे पास? अगर मैं इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करूं आई विल गेट 0.30। और अब देखें 0.30 और इन प्रोबेबिलिटीज के अंदर 0.30 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द टॉप वन। सो मैं क्या करूंगा कि जो नेक्स्ट रिड्यूस सोर्सेज हैं उनमें 0.30 जो एग्जिस्टिंग है उसको एज इट इज कैरी करूंगा और जो सेकंड 0.30 है उसको सेकंड पे प्लेस कर दूंगा एंड देन 0.25 उसके बॉटम पे आ जाएगी यहाँ पे एंड देन 0.15 विल बी हियर। और उसके बाद वाली को हमने ऑलरेडी ऐड अप किया हुआ है। सो इसकी टोटल रिडक्शंस कितनी है? 1। दैट इज वाई मैंने के की वैल्यू कितनी चूज की है? 1 चूज की है। और इसके बाद में फर्दर इसकी रिडक्शंस नहीं कर रहा बिकॉज मैंने मैक्सिमम जो वैल्यू है डिपेंडिंग अपॉन द क्वार्टरनरी 4, अगर आर की वैल्यू 4 है तो टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं? R माइनस 1। तो मैं R माइनस 1 पे अचीव कर गया हूँ दैट। और मैं इनको क्या साइन कर रहा हूँ? 0 टॉप वाले को, 1 2 3। और सिमिलरली इसी तरह इसको मैं साइन करूंगा, जो मैंने लास्ट 4 को ऐड किया इनको असाइन करूंगा 0 1 2 3। अब हमने पाथ को फॉलो करते हुए जैसे एग्जांपल 1 में फॉलो किया था हमने कोड वर्ड को जनरेट करना है। सो पाथ को फॉलो कैसे किया? 0.30 इट इज गोइंग स्ट्रेट एंड इट्स वैल्यू इज 0 है। सो M1 का जो कोड वर्ड है दैट इज 0। अब M2 को देखते हैं 0.25 वाला जिसकी प्रोबेबिलिटी है। सो 0.25 का जो रूट है दैट इज 0.25 एंड दिस गोज टू 2। सो इसको अगर मैं देखूं बैकवर्ड पढ़ूं तो एक ही कोडिंग स्कीम आ रही है दैट इज 2। जो वर्ड आ रहा है आर का वो 2 आ रहा है। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2। सिमिलरली अगर मैं 0.15 को देखता हूँ, 0.15 के पाथ को फॉलो करता हूँ, 0.15 here and it goes to the value 3. So 0.15 की जो M3 की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3। और 0.12 को अगर देखता हूँ, देखें 0.12 स्ट्रेट है 0 क्योंकि इसको 0 साइन है। देन इट, क्योंकि ये सब के सब 0.30 को अप्रोच कर रहे हैं, 0.30 एंड देन हियर। और अगर इसको बैकवर्ड पढ़ता हूँ तो ये क्या बनेगा? 1 और 0। सो M4 की क्या है? 10। कोड वर्ड क्या है? 10। अब देखते हैं M5 का 0.10 जिसकी प्रोबेबिलिटी है। सो इसके आगे 1 लिखा है। सो ये सब लास्ट 4 वाली 0.30 को अप्रोच कर रही है तो इसका पाथ क्या फॉलो करेगा? दिस 0.30 एंड 1। इसको बैकवर्ड पढ़ें 1 एंड हियर इट इज 1। तो इसकी कोड वर्ड क्या होगा? M15 का 1 1।
एंड देन कम्स M6. M6 इज 0.08, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके आगे 2 है, और ये अगेन 4 की 4.30 को अप्रोच कर रही है. दिस इज द रूट. ये क्या बनेगा 1 2. इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 2. एंड देन कम्स 0.00 M7. M7 अगेन 3. This goes to 0.30 and this 1. तो इसको अगर मैं बैकवर्ड पढ़ूं 1 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका कोड वर्ड क्या होगा 1 3. सो ये है हमारे पास कोड वर्ड्स यूजिंग हफमैन कोड फॉर 4 array. हफमैन कोडिंग स्कीम को यूज करते हुए हमने जो गिवन मैसेजेस थी इनको इनकोड किया है, और ये उनके कोड वर्ड्स हैं 0 2 3 1 0 1 1 1 2 1 3. और जो एवरेज लेंथ होगी यूजिंग फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट L इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल मैसेजेस की प्रोबेबिलिटी और कोड वर्ड की लेंथ. सो 0.3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मैसेज, और उसकी जो लेंथ है कोड वर्ड की वो 1 है इंटू 1. सिमिलरली इस तरह M2 की भी 1 है, M3 की भी 1 है, M4 की 2 कोड वर्ड्स हैं. तो M4 को जब मैंने ऐड अप किया, देखें M4 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.12 जो कि यहाँ पे आ गई, और इसकी कोड वर्ड की लेंथ क्या है 2, ये यहाँ पे आ गई इस जगह पे जहाँ पे मैंने एरो शो किया, इन सर्कल भी कर देते हैं. और इसी तरह सबको ऐड अप करेंगे. फाइनली देखें जो मैंने डमी मैसेज ऐड अप किया था इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए M7 को, तो M7 की प्रोबेबिलिटी 0 है और कोड वर्ड की लेंथ क्या है 2. तो मेरे पास एवरेज जो लेंथ आ रही है दैट इज 1.3, और एंट्रोपी क्या है दैट इज 1.209. फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए. द पॉइंट टू रिमेंबर इज कि जब मैं बाइनरी की बात करता हूं तो एंट्रोपी के लिए log टू द बेस 2 यूज हो रहा है, लेकिन जब R array की बात कर रहे हैं तो जो R की वैल्यू होगी वो बेस की वैल्यू बन जाएगी, और यहाँ पे R4 है तो ये log टू द बेस 4 आ रहा है. कोड एफिशिएंसी एंट्रोपी डिवाइडेड बाय द एवरेज लेंथ L, वो फाइंड आउट की दैट इज 93%, एंड द रिडंडेंसी इज 1 माइनस एटा 0.07. सो हफमैन कोड बेसिकली जो n की वैल्यू यूज कर रहा है दैट इज 1, जो सीक्वेंसिंग है वो 1 है, और वी आर नॉट गेटिंग 100% एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ दिस लेस लॉन्गर सीक्वेंसेस, जो मैसेज सीक्वेंसेस हैं कोडेड वर्ड के. एज डिस्कस्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड्स कि ये आइडियली हमारे पास क्या होता है जब n किसको अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, तब भी हम ईटा को एफिशिएंसी 100% अचीव कर सकते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम n की वैल्यू 2 या 3 ले रहे हैं, एंड वी कैन सी कि यूजिंग द वैल्यू ऑफ n 2 और 3 वी कैन गेट एफिशिएंसी क्लोज टू 100%. Example 3 of Huffman code is a zero memory source emits two messages M1 and M2 having probabilities 0.8 and 0.2 respectively. Find the optimum Huffman binary code for this source as well as for its second and third order extensions. Means sequencing की values मेरे पास n की value क्या है 2 है और 3 है, और ईच केस में हमने कोड एफिशिएंसीज को फाइंड आउट करना है. सो अगर मैं बात करता हूँ दो मैसेजेस की, तो यहाँ पे M1 है और M2 है, दो मैसेजेस हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया. 0.8 फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी है, 0.8 सेकंड की प्रोबेबिलिटी है, और चूंकि ये हैं ही दो तो अगर मैं लास्ट 2 को ही लेता हूँ क्योंकि इसकी फर्दर रिडक्शंस नहीं हो सकती, क्योंकि बाइनरी है तो मुझे 2 ही चाहिए और ये मैसेजेस भी मेरे पास 2 ही हैं. तो अगेन इनको टॉप वाले को 0 और बॉटम वाले को 1 अगर सेट करता हूँ तो जो कोड वर्ड बनेगा फर्स्ट का दैट विल बी 0. M1 का कोड वर्ड क्या होगा 0, M1 का कोड वर्ड क्या होगा 1, और जो एवरेज लेंथ होगी, एवरेज लेंथ जो होगी आई नो कि वो किसके बराबर होती है समेशन PI, और जो कोड वर्ड मेरे पास क्या बनता है LI. तो अगर देखें PI पहले की प्रॉब्लली 0.8 है, ठीक है, और कोड वर्ड की लेंथ 1 है,
और सेकंड की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, कोड वर्ड की लेंथ 1 है, तो टोटल मेरे पास एल की वैल्यू एवरेज कोड लेंथ क्या बनेगी, वो 1 बनेगी। और जो हाफमैन कोडिंग है और जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी यूजिंग फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करूंगा वो समेशन का पी आई इंटू लॉग ऑफ पी आई, तो आई विल गेट 0.72 बिट। और एफिशिएंसी क्या होगी, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द एफिशिएंसी 0.72, क्योंकि एंट्रोपी डिवाइडेड बाय द एल, अगर उसको डिवाइड करें एंट्रोपी को एल से, आई वी कैन फाइंड आउट द एन एफिशिएंसी। सो जब मेरे पास कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, एन की वैल्यू 1 है, आई हैव द एफिशिएंसी ऑफ 72%। नाउ अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है, सो in this slide the next discussion is the value of n is equal to 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास m1 और m2 की जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। वो क्या कॉम्बिनेशन है कि m1 m1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m1 m2 हो रहे हैं, m2 m1 हो रहा है, या m2 m2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, देखें m1 और m1 0.8 दोनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी 0.64। एंड रिमेंबर दैट डिस्कशन जो हमने डिस्कशन की थी P ऑफ एस एन, वो प्रोबेबिलिटीज किसके बराबर होगी, n इंटू पी ऑफ n। ठीक है, उसके हिसाब से जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है। सो टोटल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास सीक्वेंसिंग के हिसाब से क्या बनेगी, सबकी प्रोबेबिलिटीज को जो गिवन है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए m2 और m1, 2 की प्रोबेबिलिटी 0.8 है और 0.2 है, और m1 की 0.8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 0.16। सिमिलरली 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.04। क्लियर। अब नाउ हमने क्या करना है, लास्ट 2 को एड अप करना है। 0.16 और 0.04 इन दोनों को अगर मैं ऐड अप करूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा 0.20, तो वो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे ऐड अप हो रहा है। तो इसीलिए देखें ये 0.64 एज इट इज यहाँ पे गया, और इन दोनों का जो एडिशन है वो सेकंड नंबर पे आ गया, और 0.16 यहाँ पे आ गया। सो अब मेरे पास रिडक्शन में कितनी वैल्यूज, 3 आ गई हैं। जो रिड्यूस सोर्सेज है वो 3 हो गए, लेकिन क्योंकि मैं बाइनरी से कर रहा हूँ तो मुझे कितने सोर्सेज चाहिए, रिड्यूस सोर्सेज 2 होने चाहिए। सो अगेन मैं इन दोनों को ऐड अप करूंगा, ये आंसर आएगा 0.30। जो 0.64 से छोटा है ये यहाँ पे आ गया, और 0.64 एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को, अब 2 ही है, आई डोंट नीड टू रिड्यूस इट फर्दर। सो पहले को 0 असाइन किया, सेकेंड को 1 असाइन किया। अब 64 को देखें, 64 इज गोइंग स्ट्रेट, दिस वन इज गोइंग स्ट्रेट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो 64 का कोड क्या है, 0 है। सिमिलरली 0.16, अब 16 का रूट देखें, पाथ फॉलो करें। 16 is following this path, then it goes to 0.3 and then here. So अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, this is first one and then यहाँ पे अगेन 0 और 1 है, दिस इज सेकेंड वन। सो इसका जो कोड वर्ड बनेगा दैट इज 1 1। सो 64 का कोड वर्ड क्या है, 1 1। नाउ थर्ड को देखते हैं, 0.16, दिस इज द थर्ड लास्ट वन। 0.16, इसको अगेन 0 1 0 1 एंड 0 1। अब देखिए इस पाथ को फॉलो करें, 0 0 एंड 1। सो स्ट्रेट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में इट इज 0 0 1, लेकिन हमने चूंकि बैकवर्ड स्टडी करना है तो ये क्या होगा, 1 0 0। तो थर्ड का कोड वर्ड क्या है, 1 0 0। फाइनली द कोड वर्ड फॉर m2 इंटू m2, क्योंकि n की वैल्यू 2 थी 0.04 प्रोबेबिलिटी के लिए, इसको अगर पाथ को फॉलो करूं 1 0 1, इसको बैकवर्ड पढ़ें इट विल बी 1 0 1। So you can see here the code word for M4 is 101. So depending upon the code word length, I can find out the average length
average code word length and entropy, and dividing these two I can get the value of efficiency. So अगर यहाँ पे code word length की बात करूँ तो for first m1 into m1 code word length is 1, here code word is 2, length is 2, here it is 3 and here it is again 3. So इस कोड वर्ड लेंथ के ऊपर जो रिस्पेक्टिव मैसेजेस के अगेंस्ट बन रही हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करवाऊँ प्रोबेबिलिटीज़ के साथ और इन सबको ऐड अप करूँ तो मैं एवरेज लेंथ को फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे शो है। एल बार के एन की वैल्यू जब 2 है, इन सबको ऐड किया 1.56 और डिवाइड किया एंट्रोपी से, जो कि एंट्रोपी की वैल्यू आ रही थी, तो जो मेरे पास ईटा की वैल्यू बन रही है दैट इज 92%। नाउ जब मेरे पास n की वैल्यू, द क्वेश्चन स्टिल कंटिन्यूज कि व्हाट विल बी द कोड वर्ड इन द एफिशिएंसीज व्हेन द वैल्यू ऑफ n विल बी 3। सो फॉर n3 मेरे पास जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऑल 3 m1 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 m2 m1 m2 m1, ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे शो हैं, दीज आर द मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस। अगर इनको मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस हैं, 8 कॉम्बिनेशंस। अगेन अब यहाँ पे मैं लास्ट 2 को लूँगा, ऐड अप करूँगा और रिड्यूस सोर्सेज फाइंड आउट करता जाऊँगा। कब तक मूव आउट करूँगा, जब तक मेरे पास रिड्यूस सोर्स की वैल्यू मेरे पास 2 नहीं रह जाती। फिर उनको 0 1 असाइन करके बैकवर्ड मूव करूंगा, जिस तरह हमने पहले 2 एग्जांपल्स में डिस्कस किया है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोड वर्ड। कि फर्स्ट के लिए 0 है 1 0 0, सिमिलरली फाइनल वाले के लिए इट विल बी 1 1 1 1 1, ऑल वंस। और इन वैल्यूज की बेस के ऊपर और आई कैन सी द length of the code word for all the messages, as for first message code length is 1 and as for the last message code word length is 1 2 3 4 5, it's 5. So I can find out the average length by using the probabilities and code word length of the respective codes of the messages. तो इन सबको ऐड अप करूंगा, it will be 2.184 एंड जो एफिशिएंसी है दैट विल बी, जो आपकी एवरेज लेंथ और एवरेज कोड वर्ड जो आपको रिक्वायर्ड हैं और जो एंट्रोपी है, उन दोनों को अगर डिवाइड करूंगा आई कैन सी दैट द एफिशिएंसी इज गेटिंग क्लोजर टू 1, दैट इज 98.9%। सो दिस वाज योर फाइनल एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। और इस लेक्चर में हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन टू द इंफॉर्मेशन थ्योरी देखा है कि इंफॉर्मेशन थ्योरी है क्या, एंड और यूजिंग हफमैन कोडिंग हम किस तरह अपने मैसेजेस को इनकोड कर सकते हैं फॉर ट्रांसमिशन टू गेट अ रिलायबल कम्युनिकेशन ओवर एन अनरिलायबल चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग।